Children, today we will start chemical kinetics. Although one more chapter is still remaining in physical chemistry, and the most important numerical part is from chemical kinetics, solid state and electrochemistry. So this chapter is also very important, and today we have to discuss. Now come to the start. Today we have to discuss the first of all, what is chemical kinetics? In chemical kinetics we must know what is the meaning of chemical kinetics. It is taken from the Greek word kinesis, which means movement, and the branch of chemistry which deals with the rate of the reaction is known as the chemical kinetics. So it is derived from the Greek word kinesis. The word is kinesis, which means movement. Hence, the branch of science which deals with the reaction rate and their mechanism is known as the chemical kinetics. So, the branch of science which deals with the reaction rate and their mechanism is known as the chemical kinetics. Now, what is rate of reaction? Rate of reaction or average rate of reaction. So please turn over. First of all, you know the average rate of the reaction. Here is average rate of reaction. This one is on page number 94. Page number 94 of your NCERT book. Average rate of reaction means what? Average rate of reaction is defined as the change in concentration of reactant or product in unit time. Change in concentration of reactant or product in unit time. Suppose that R means reactant, P means product. This one is the reactant, and this one is the product. So reactant is converted into product, and R average is equal to minus del R by del T. Why minus? Because the reactants are decreasing. इसमें क्या क्यों माइनस देते हैं? माइनस इसलिए देते हैं कि रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है. यहाँ पर प्लस क्यों देते हैं? चूंकि प्रोडक्ट यदि बढ़ रहा है तो रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम दोनों के टर्म में निकाल सकते हैं. रिएक्टेंट के भी टर्म में निकाल सकते हैं. जब रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे तो माइनस देंगे, प्रोडक्ट के टर्म में निकालेंगे तो प्लस देंगे. तो दोनों के टर्म में हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. और what is the meaning of instantaneous rate of reaction? Average rate of reaction, the change in concentration of reactant or product in unit time. But what is instantaneous rate of reaction? And what is the difference between average rate of reaction and instantaneous rate of the reaction? The instantaneous rate of the reaction is the change in the concentration of the reactant or product at any instant of time. This is also the change in concentration of the reactant or product, but at any instant. Any instant का मतलब होता है कि किसी भी क्षण में, किसी भी टाइम में, जैसे 5वां मिनट में, 10वां मिनट में, 11वां मिनट में, 20वां मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 10 मिनट में नहीं, 20 मिनट में नहीं, 50 मिनट में नहीं, 10वां मिनट में, 20वां मिनट में, 50वां मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. और उसके लिए एक्सप्रेशन आता है आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस, यहाँ स्मॉल चेंज है, डी क्या है? स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पर डी क्या है?
स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड small change in the concentration of the reactant, here you can write the expression for instantaneous rate of the reaction. Now the unit of the rate of the reaction, unit क्या होता है, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन बाई टाइम। R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाई टाइम। कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन था इनिशियल फाइनल कितना हुआ उसका डिफरेंस, टाइम कितना था इनिशियल फाइनल टाइम उसका डिफरेंस चेंज इन टाइम होता है। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर, और टाइम को सेकंड में, यदि ऐसा यूनिट देखा जाए तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है मोल्स पर लीटर को MS इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है। बहुत सारा स्लो रिएक्शन है जिसका कि मतलब ईयर्स में आता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जनरली इसको यदि देखा जाए तो इन्हें एट द इन सिंपल मैनर वी कैन एक्सप्लेन और वी कैन एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एज मोल्स पर लीटर पर सेकंड और MS इनवर्स। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। किसी चीज का, किसी रिएक्शन का रेट बढ़ता भी है और किसी रिएक्शन का रेट घटता भी है। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। प्रेशर पर डिपेंड करता है, किसी रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। कैटलिस्ट, कभी कभी रिएक्शन रेट को कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यदि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वी ऐड कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड समटाइम्स वी डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय यूज ऑफ द नेगेटिव कैटलिस्ट। यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। यानी टेम्परेचर से भी इफेक्ट होगा, प्रेशर से भी इफेक्ट होगा और कैटलिस्ट से भी इफेक्ट होगा। एक और पॉइंट है सरफेस एरिया, यदि हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, यदि मान लो कि पानी है, पानी कहीं पर जमा हुआ है, यदि उसको फैला दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन, विंड स्पीड, यदि विंड स्पीड कम है रेट ऑफ रिएक्शन कम है, विंड स्पीड ज़्यादा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कपड़े को ले जा करके फैला देते हैं, जल्दी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? कि उसका हम एरिया बढ़ा दिए और उसका विंड स्पीड, जहाँ पर विंड स्पीड ज़्यादा है विंड स्पीड से इफेक्ट होता है, विंड स्पीड कम है रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो ये फिजिकल और केमिकल हर तरह का रिएक्शन में, फिजिकल प्रोसेस में भी और केमिकल प्रोसेस में भी ये सब लागू होता है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया है, और भी एक आध फैक्टर है जो मोस्टली ये 4-5 फॉलो करता है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन घटता बढ़ता है। अब आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे कैसे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यदि निकालना है तो जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे आर एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो इस रिएक्शन के लिए 2HI गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस, इस टोटल रिएक्शन के लिए आर एवरेज क्या होगा? तो आर एवरेज होगा, ये रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो हमको माइनस देना पड़ेगा, रिएक्टेंट के टर्म में हमको माइनस देना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा डेल HI बाई डेल टी। प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो प्लस देना पड़ेगा, डेल H2 बाई डेल टी। इधर भी प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो डेल I2 बाई डेल टी। यानी ये दो प्रोडक्ट के टर्म में और सब इक्वल है, लेकिन साइन में डिफरेंस है। साइन क्या बताता है? साइन बताता है कि ये रिएक्टेंट के टर्म में है, साइन बताता है कि ये प्रोडक्ट के टर्म में। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये सब किताब में बना हुआ है। इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं एवरेज। तो आर एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करिए, -1/5 डेल BR माइनस बाई डेल टी,
एंड -1/6 del H plus by del T, 1/3 del Br2 by del T is equal to 1/3 del H2O by del T। तो इसका मतलब है कि ये माइनस में आता है, ये भी माइनस में आता है, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं, ये माइनस के टर्म में आता है और ये सब प्लस के टर्म में आता है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन का हम एवरेज रेट इस टर्म में निकाल सकते हैं। ऐसे तरह का बहुत सारा एवरेज रेट निकालने के लिए दिया हुआ है, जिसको कि हम बता दें। जैसे पेज नंबर, तो R एवरेज इज इक्वल टू -0.02 -0.03, इसका भी आ जाएगा। तो इसको 25 मिनट को बनाएंगे यदि सेकंड, तो ये आ जाएगा इतना सेकंड में। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। और टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ कैसे निकलता है? ये है कंसंट्रेशन और ये है टाइम। तो कंसंट्रेशन, इस रिएक्शन से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। ये देखिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। रिएक्टेंट क्या होता है? घटता है। प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है। प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है। जब टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा, रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ऐसे क्या पता चलता है? प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ऐसे क्या पता चलता है? रिएक्टेंट घट रहा है। तो कंसंट्रेशन और टाइम में यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस नेचर का ग्राफ आता है। तो इतना आज स्टार्ट हम कर दिए, इतना आप लोग अच्छा से बच्चों आज हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि आप जैसे स्टार्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्टिंग चैप्टर आज शुरू हुआ है, तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों, और इन्वॉल्व होकर शुरू से ये काइनेसिस से कैसे आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट कैसे निकालते हैं, रेट का यूनिट क्या होता है, एक आध न्यूमेरिकल हम बताए हैं, उस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल बना हुआ है। तो अपने को इन्वॉल्व कीजिए, और इससे रिलेटेड जो है मतलब जैसे किताब में दिया हुआ है, जिस तरह से हम पढ़ाएं उसको उसी हिसाब से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, तब फिर आगे समझ में आएगा। अदरवाइज यदि पहला ही दिन नहीं समझ में आएगा, पहला ही दिन जो बच्चा ये 2 पेज तैयार ही नहीं किया, उसको आगे तो परेशानी होना ही है। रेट नहीं निकाल सकेगा, ऑर्डर नहीं निकाल सकेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।